Ladies and gentlemen, let us have our last lecture on verbs as well as paragraph writing. And this week we have discussed verb in detail from all dimensions. Multi-dimensional approach is yesterday I told you about our new study methodology, which is also my own study methodology, and that is VSB. VSB, various sources bridging. Various sources bridging. So please write a comment that I use VSB and rhyme, and for using VSB and rhyme I have to apply my mind, my senses and my creativity. So when we combine our mind, senses and creativity, then we get a lot of results. What matters? That is star, STAR. Today I am giving you another formula, and that is star, STAR. If I am audible and visible, so please like this video broadcast and share the link in 3 WhatsApp groups and write a comment that I apply VSB and rhyme, and today I will also start applying star, STAR. VSB, rhyme, star. If I am audible and visible, so please like this video broadcast and share the link in 3 WhatsApp groups. So STAR is an acronym. That is an acronym with capital letters, STAR. So I apply VSB rhyme and will also start applying star, STAR. Star with the capital letters, that is acronym. So anybody can tell me what is VSB rhyme and any idea about star? Do you have any idea about star? And today also I will give you another formula, and that is ought fact value approach, because that is related to the modal verbs. The fourth point that I want to share with you, that is ought fact value approach. Is ought dash ought, 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 is dash ought fact value approach. Now let us start over this session. I hope if you have shared the link in 3 WhatsApp groups, so please let me know. Let me explain star, STAR. Any idea? What does it mean, star? VSB already you know, visual, so not visual, various. Chaudhry Sikandar, why you wrote visual? Various sources bridging. Rationalism, empiricism. Very good, Shah, safe, member. Exactly. Star, this mother tongue, local language is a big problem. Now Shah wrote star correct, but spelling, situation, vowels, consonant, it's a big problem. Our local languages, ये जो हमारी मकामी ज़बानें हैं, उर्दू, पश्तो, बलूची, सिंधी, पंजाबी, ये बहुत बड़ा मसला है इंग्लिश के लिए. मतलब सिचुएशन का स्पेलिंग उसने गलत लिखा. सिचुएशन,
सिचुएशन, SITUATION, पता नहीं क्या क्या लिखा है, साटुआट्यून. So star means situation, task, action and result. This is a famous management approach. कि हम चीज़ों को कैसे मैनेज करें. मैनेजमेंट मीन्स प्लान, कंट्रोल, एग्जीक्यूट एंड गेट रिजल्ट्स. मतलब जब भी आप मैनेजमेंट करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRM, फाइनेंशियल रिसोर्स मैनेजमेंट, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, एनी मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, management. So management means plan, control, execute and get results. This is the typical definition of management. So one of the formula of management is STAR. STAR. Whenever you manage something, plan it, control situation. For example, this class I am managing. I as a teacher, you as a student, we are managing this class. What we have to do? What is management? Plan. I planned it last night. I informed you 2, 3, 4 times. Planning. Now I am executing. Execute means to do it. And then we get results. There should be some result, otherwise why management? Money for business, money for knowledge management, knowledge economy. So we go for knowledge, data, information. So that is the basics of management. Can you write these? We plan, we control. You just plan and you don't control. No. As a teacher, I must control this classroom. Otherwise आप सारी जो है ना शगोफी छोड़ेंगे, कोई इधर जाएगा, कोई उधर भागेगा. तो थोड़ा सा इसको कंट्रोल करना ज़रूरी है. Administer, control. Then execute. Let's do it. And then we have get results. What is the product? Why should I manage? मैं खामखा मैनेजमेंट करता जाऊँ, कोई मुझे मिलेगा नहीं, कुछ नहीं मिलेगा. रिजल्ट क्या है? पैसा मिलता है, एंटरटेनमेंट, नॉलेज, डेटा, इंफॉर्मेशन, कोई प्रोडक्ट कुछ तो हो. वरना मैं मैनेजमेंट क्यों करूँ? मैं सो क्यों न जाऊँ? मैं खाना क्यों न खाऊँ? मैनेजमेंट की क्या ज़रूरत है? So STAR is a management formula, STAR, which we can apply to our study as well, जिसको हम अपनी स्टडी पे भी अप्लाई कर सकते हैं. सिचुएशन, CSS, competitive exam, PMS, subjects, 12 papers, English, grammar, modal verbs, verb, parts of speech, sentences, paragraph. This is situation. Oh, alarming situation. मतलब कितनी चीज़ें हमने करनी है, ये सिचुएशन है. Situation. So what are the tasks that we have to do? Tasks. Topics. We divide the tasks into topics. Situation बहुत बड़ी चीज़ है. मैंने CSP बनना है, PMS ऑफिसर बनना है, ये मेरा सिचुएशन है. इतनी कोर्सेज, इतने पेपर्स मैंने करने हैं. Situation is always fluid. FLUID, fluid. सिचुएशन जो क्या होता है, फ्लूइड होता है. फ्लूइड का मतलब है लिक्विड, माया, कोई पता नहीं चलता किधर जाए बंदा, क्या करे. टास्क उसको थोड़ा सा कंट्रोल करता है, जी यार ये टास्क आपने करने हैं. देन एक्टिविटी और एक्शन, एग्जैक्ट एक्शन. आप एक चैप्टर कवर करते हैं, टॉपिक करते हैं, क्लास अटेंड करते हैं, डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं, मॉडल वर्ब्स को समझते हैं, तो ये एक्शन हो गया.
रिज़ल्ट ये है कि आपको मॉडल वर्ब्स आ जाते हैं, आप एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, आपको करियर मिल जाता है। स्टार, सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट, ये अपने स्टडी रूम में मोटा मोटा लिख के। सिचुएशन क्या है? सिचुएशन इज ऑलवेज वेरी फ्लूइड। मतलब सिचुएशन तो बंदे को ओवरवेलम करता है, यार ये क्या है, ये मैं कहाँ फंस गया, इतना बड़ा दरिया को मैं कैसे स्विमिंग करके अबूर करूँगा, ये तो बहुत औखा काम है, बड़ा लंबा काम है, बड़ा मुश्किल काम है। तो सिचुएशन होता है इस तरह। सम सिचुएशंस आर अलार्मिंग, सम सिचुएशंस आर अलार्मिंग, आग लग जाती है। तो आग लग वाले सेक्टर में क्या होता है? फायर फाइटिंग मूड, उसको फिर क्या कहते हैं? फायर फाइटिंग मूड। फायर फाइटिंग मूड, जब आप एग्जाम एक महीना रह जाता है, एक हफ्ता रह जाता है, कल मेरा पेपर है, ओहो, अलार्मिंग सिचुएशन, फायर फाइटिंग मूड। इससे पहले आप थोड़ा सा मैनेजमेंट करें, आग को न लगाने दें। जब आग लग जाए तो उसका बुझाना बड़ा मुश्किल होता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्सटिंग्विश फायर। एक्सटिंग्विश, उसके वर्ब कौन सा हम यूज़ करते हैं? एक्सटिंग्विश। फायर एक्सटिंग्विशर, फायर को मारने वाला। तो ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है। कुछ लोगों को नींद नहीं आती, ये उनका सिचुएशन है। किसी को खाना हजम नहीं होता, वॉशरूम में 5-5 घंटे बैठे होते हैं। तो सिचुएशन तो मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन आपने स्टार जो है उस पर अप्लाई करना है कि भाई सिचुएशन तो है, सिचुएशन से घबराना नहीं, ठीक है ना, घबराना नहीं। सिचुएशन तो हमेशा कॉम्प्लिकेटेड होता है, फ्लूइड होता है। लोग सिचुएशन में जाके मर जाते हैं बस। यार उसको कन्वर्ट करो टास्क में, एक्शन में, और रिजल्ट ले लो। So the last formula that I am telling you today, that is ought formula. This is directly related to our today's topic. Our today's topic, which is modal verbs. Modal verb. Where from the modal comes? Modal, modality. Modality. आप किसी बिजनेस करने जाते हैं, किसी दफ्तर में जाते हैं, किसी के साथ जो है आप बातचीत करते हैं, नेगोशिएशन करते हैं, टेबल टॉक्स करते हैं। तो टेबल टॉक से पहले जो है क्या होता है? व्हाट आर द मोडेलिटीज। बात तो हम करेंगे, कोई रिश्ता मिश्ता आपने लेना है, कोई और चक्कर चलाना है, तो चक्कर चलाने के मोडेलिटीज होते हैं। मोडेलिटी, इट इज नॉट मॉडल, MODEL। MODEL और MODAL में फर्क है, ठीक है? MODAL, MODEL। तो मोडेलिटी मीन्स व्हाट आर द डिटेल्स, व्हाट आर द प्रोसीजर्स। मोडेलिटी मीन्स प्रोसीजर, क्या क्या करना होगा यार बताओ ना। व्हाट आर द प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स। प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, अब इसे मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। तो मे क्या है? कुछ भी नहीं है। असल तो आपने कम इन करना है, अंदर आना है। दैट इज द एक्चुअल एक्शन, दैट इज द एक्चुअल एक्शन। कमरे के अंदर आना जो है वो आपका एक्चुअल वर्ब है, कम, या फ्रेजल वर्ब कम इन। लेकिन ये मॉडलिटी है जी, प्रोसीजर्स है, मेथडोलॉजीज, प्रोटोकॉल, ये सारी चीज़ें जो है ये प्रोटोकॉल है। अगर आप फॉरेन सर्विस में जाते हैं, आई वर्क एज DCP, डिप्टी चीफ ऑफ प्रोटोकॉल। आई वॉज डिप्टी चीफ ऑफ द होल पाकिस्तान स्टेट प्रोटोकॉल। अब प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल, प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स, modalities, these are formalities. These are what? Formalities. Formalities. ये रस्म रिवाज होते हैं, ट्रेडिशंस। हेड ऑफ द स्टेट आता है,
सो यू हैव टू रिसीव हिम विद रेड कारपेट। आपने उसको रेड कारपेट से रिसीव करना है, सुर्ख कारपेट उसको एयरपोर्ट पे लगा के उसके गाड़ी तक। ये प्रोटोकॉल है। अब क्या उसके पाँव में मेहंदी लगी है, क्या है, कोई कांटे है, क्या है, क्यों हम करते हैं ये? उसको कहो यार आ जाओ, बस जहाँ से उतरो गाड़ी में बैठो। क्या चक्कर है ये रेड कारपेट बिछाना और पूल देना और ये सारी कहानियाँ करना? इसकी क्या ज़रूरत है? फॉर्मेलिटीज़ है, रस्म रिवाज है। अब क्या करें? लोग जो है ना शादियों पे पूरी ज़िंदगी में इतना नहीं खर्चा करते जितने शादी के दिन खर्चा करते हैं। So these are modalities. Modalities. What are the modalities? What is the protocol? मैं तो आऊँगा लेकिन क्या प्रोटोकॉल मुझे मिलेगा? यार प्रोटोकॉल कोई खाने की चीज़ तो नहीं है, कोई लड्डू तो नहीं है कि तुम्हें मिलेगा, बस लोग चाहते हैं। तो यही हाल जो है ये मॉडल वर्ब्स का है। बेसिक प्रॉब्लम जो है वो क्या है? इज ऑट। असल काम है अंदर आना। कैन क्या है? मैं क्या है? ठीक है ना? माइट क्या है? विल, वुड, मस्ट, हैव टू, शल, शुड, ये सारे मॉडल वर्ब्स है। कैन यू मेक द लिस्ट ऑफ मॉडल वर्ब्स? एनीबॉडी? द लिस्ट ऑफ द मॉडल वर्ब्स। आई एम टॉकिंग अबाउट द मॉडल्स और मॉडल वर्ब्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मॉडल, MODEL। मॉडल जो है वो और चीज़ है, ये मॉडल जो है AL के साथ ये और चीज़ है। So we have can, could, may, might, will, would, must, shall, should। ये लिस्ट है किस चीज़ की? मॉडल वर्ब्स की। सारी मॉडल्स की या मॉडल वर्ब्स की। एक है जिसको हम कहते हैं फ्रेजल मॉडल्स या मॉडल फ्रेज या सेमी मॉडल्स। मॉडल फ्रेजेस और सेमी मॉडल्स। एक मॉडल है कुड, कैन, वुड, मे, माइट, विल, मस्ट, शल, शुड। ये एवी जो है पराए शादी में जो है वो अब्दुल्ला खान जो है वो क्या कहते हैं, वो बांसुरी बजाता है। ये असल वर्ब्स नहीं है, ये फॉर्मेलिटीज के लिए यूज होते हैं। ठीक है, तो वो फॉर्मेलिटीज क्या क्या है? लाइकलीहुड, एबिलिटी, एडवाइस, परमिशन, हैबिट्स, ऑब्लिगेशन। ठीक है। अब एक बंदा जो है आपका जानने वाला है, जिसका आपके साथ जो है वो कोई रस्म रिवाज नहीं है, ठीक है, फॉर्मेलिटीज नहीं है, मॉडलिटीज नहीं है, वो एकदम से दरवाज़ा खोल के अंदर आ जाता है। कोई मे आई कम इन सर नहीं कहता, कैन आई कम नहीं कहता। ठीक है, वो एम ही आ जाता है बगैर किसी मॉडलिटीज के। तो एक्चुअल वर्ब जो है वो कम है, मैं नहीं है। मैं सिर्फ एक मॉडलिटी है, मैं एक रस्म है जो रियलिटी नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो है वो इसी रियलिटी में रहते हैं। लाइकलीहुड, यार बताओ लाइकलीहुड, प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, होगा कि नहीं होगा? यार जब होगा तो तुम भी देखोगे, मैं भी देखूंगा। लेकिन कुछ लोगों की चीज़ों में मज़ा आता है। एबिलिटी, ठीक है, लाइकलीहुड, एबिलिटी, एडवाइस। यार मुझे नसीहत करो, क्यों मैं तुम्हें नसीहत करो? करो, काम करो। नसीहत क्या है? मोटिवेशन क्या है? टाइम वेस्ट करना है। जो करते हैं वो करते हैं, जो नहीं करते वो नहीं करते। उनको किसी के कहने की कोई जरूरत, एडवाइस की कोई ज़रूरत नहीं होती। एक फॉर्मेलिटी है, बस एक रिवाज बन गया है। परमिशन क्यों लेते हैं हम, इजाज़त क्यों लेते हैं? जब आपने आना है तो आओ, नहीं आना तो मत आओ। हैबिट्स, आपको जो करना है वैसे भी करना है आपने। ऑब्लिगेशन, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। इस चीज़ को जब फिलॉसफी ने स्टडी किया, द फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज, ठीक है ना, एक बंदा आपके दरवाजे पे पहुंच गया है, आप नीचे अपनी कुर्सी पे बैठे हैं, आने दो उसको, क्या चक्करों में लगाया है उसको।
तो फिलासफी ऑफ लैंग्वेज ने जब इस चीज़ को स्टडी किया तो दे गेव अनदर फार्मूला एंड दैट इज कॉल्ड इज ऑट फैक्ट वैल्यू अप्रोच। इज ऑट फैक्ट वैल्यू, ठीक है। हमारे अकदार, ओ जी मशरक़ में वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा है। क्या वैल्यूज़ है? साला जो है वो गाली है, साली जो है वो गाली है, सास ससुर जो है वो गाली है। क्या कौन सी चीज़ हमने बचाई है? सारी गालियाँ है। लेकिन जी हमारे अकदार बहुत है। ओ तो देवर जो है उस पर भी शक होता है। देवर को भी कहते हैं जी तुमने मेरी बीवी को नहीं देखना, क्या पता मेरी बीवी तुम्हारे साथ चली जाए। ये तो हमारी वैल्यूज़ है, ठीक है ना। तो लेकिन है एक कहानी चल रही है। तो फिलासफी ने जब इस चीज़ को स्टडी किया तो उसने एक फार्मूला दिया इज ऑट। एक फिलासफर है डेविड ह्यूम, इसमें बहुत काम किया है इस पे। डेविड ह्यूम, HUME, डेविड ह्यूम, ये उसका फार्मूला है इज ऑट फैक्ट वैल्यू। फैक्ट वैल्यू, फैक्ट क्या है कि तुम्हें ये भी शक है कि मेरा भाई जो है मेरी बीवी को वरगलान ले मुझसे, इसको इतना तुम्हें अपनी मर्दानगी पे वो नहीं होता यकीन कि भाई मेरा जो है मेरा अपना सगा भाई जो है मेरी बीवी के साथ भागेगा, बस जी उससे पर्दा कराओ, दूर रखो। तो ये हमारा क्या है? वैल्यू है। फैक्ट क्या है? यार नहीं है, वो तुम्हारी बीवी है, तुम एक ठीक ठाक इंसान हो, उसको खुश रखते हो, कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर भी और उसके ऊपर भी। जिस तरह की वेस्ट में है, मगरिब में मजाल है कि वो किसी को देखे। 15 सेकंड के बगैर जो है 15 सेकंड से ज़्यादा आप किसी को उसकी मर्ज़ी के बगैर नहीं ताड़ सकते, उसको नहीं देख सकते। वो कहते कौन हो तुम, क्यों देख रहे हो मुझे, क्या है, हाँ जी बताओ। तो ये सारे भाग जाते हैं। तो डेविड ह्यूम गेव द फार्मूला दैट इज ऑट फैक्ट वैल्यू। हमारे कुछ माशरे जो है वो वैल्यूज पे चलते हैं, रियलिटी में कुछ नहीं होता, फैक्ट कुछ नहीं है, ठीक है। ऐ भी हवाई बातें हैं सारे। तो इज जो है, इज क्या है बताओ जी। ओ जी मैं आपके लिए चांद सितारे लाऊंगा, ये क्या है? वैल्यूज है। यार मुझे आइसक्रीम चाहिए, यार मेरे पास तो पैसे नहीं है, ठीक है ना। तो आइसक्रीम के साथ आपके आइसक्रीम के लिए आपके पास पैसे नहीं है और चांद सितारों की बातें कर रहे हो। तो डेविड ह्यूम ने दुनिया को बताया कि यार इज में रहो। इज कितना है तुम्हारा, कितना माल है तुम्हारी जेब में, तुम्हारी रियलिटी क्या है। ऑट, OUGHT, ऑट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बहुत कुछ होना चाहिए, मुझे पूरी दुनिया का बादशाह होना चाहिए। ये ऑट तो है, लेकिन होगा कि नहीं होगा। तो ये डिटेल में फिर आप गूगल में बाद में देखिए उसको, इज ऑट फैक्ट वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो ये जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं ये सारे जो है वैसे फॉर्मेलिटीज़ के लिए है, मॉडलिटीज़ के लिए है, इनका लैंग्वेज में कोई ख़ास काम नहीं है। इस वजह से इनके जो रूल्स है वो भी डिफरेंट है, इसके रूल जो है वो भी डिफरेंट है। अच्छा, मेरा अपना एक फार्मूला है दैट व्हाट आट टू बी मस्ट कुड बी, कि जब आप कहते हैं इट शुड बी, शुड मस्ट बी कुड, अदरवाइज नो शुड। ये मेरा अपने एक फिलॉसफी में कंट्रीब्यूशन है ओरिजिनल, कि भाई जब आप शुड कहते हैं होना चाहिए, तो उसको फिर कुड में चेंज करो, कैन करो। मतलब आप चाहते हैं कि काम हो जाए, मैं ऑफिसर बन जाऊं, तो फिर बन जाओ, वरना झूठी हो, मुनाफिक हो, यू आर टेलिंग लाइज, ठीक है। होना चाहिए, मुझे जी 10-15 घंटे स्टडी करनी चाहिए, तो क्या कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ऐ भी चाहिए। तो ये उसका फिलोसॉफिकल डायमेंशन है। ग्रामेटिकल जो है वो ये है कि भाई जब वो रूटीन का जो वर्ब है ही शी इट के साथ हम एस लगाते हैं, ठीक है।
तो मॉडल वर्ब्स में हम नहीं लगाते। एक है मॉडल वर्ब्स जो हमने गिने, कैन, मे, विल, वुड। एक है मॉडल फ्रेजेस। मॉडल फ्रेजेस, तो मॉडल फ्रेजेस क्या है? वो मसलन हैव टू, आई मस्ट गो, आई मस्ट गो, मुझे जाना चाहिए, आई हैव टू गो। तो हैव टू, मस्ट इज मॉडल वर्ब, हैव टू इज सेमी मॉडल और मॉडल फ्रेज। able to, be able to, this is another model phrase. So usually we say that he goes, I go, but when modal verb comes, this difference is evaporated. ये difference जो है वो फिर ख़त्म हो जाता है। मसलन I can go, he can go, ये एक ग्रामर का एक रूल है कि कैन जब आ जाए, कैन, तो उसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो हम कहते हैं ही गोज, शी गोज, इट गोज, आई गो, ये जो एस है ये उड़ जाता है। फिर हम मॉडल वर्ब्स में एस नहीं लगाते। अच्छा, दूसरा ये है कि जब हम इन्फिनेटिव वगैरह जो है वो राइट आफ्टर मॉडल आते हैं। आई कैन गो, वी कैन नॉट से आई कैन टू गो। इन्फिनेटिव जो वर्ब का बेसिक फॉर्म है, गो, राइट, रीड, ऑल दीज आर इन्फिनेटिव्स। इन्फिनेटिव्स, तो इन्फिनेटिव्स में टू नहीं लगता मॉडल वर्ब्स में। आई कैन गो, कैन आई गो, but there should be no to, to, and there will be not after the pronoun, after the modal verb not, NOD, if we want to convert it into negative. For example, I will not come tomorrow, I will not come tomorrow. So not for negativity should be immediately put after मॉडल वर्ब्स। ये जो मैंने आपको सोर्सेज दिए हैं, सारे रूल्स उसमें डिटेल में लिखे हैं। ओके, नाउ आई मे गो, आई माइट गो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आई मे गो एंड आई माइट गो? प्लीज राइट दिस टू सेंटेंसेस। एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस व्हेन आई से आई माइट गो, आई मे गो? इन दोनों में क्या फर्क है? जब मैं कहता हूं आई मे गो, अब असल एक्शन वर्ब क्या है? गो। काम जो है हमारा गो के साथ है। ये मे कहां से आ गया? मे भी वर्ब है, मॉडल वर्ब है, लेकिन कभी हम मे कहते हैं, कभी हम माइट कहते हैं। तो ये मे और माइट का जो चक्कर है, कैन और कुड का जो चक्कर है, शल और शुड का जो चक्कर है, ये भी आपका समझने वाला काम है। नो, आई माइट गो वी कैन यूज इन प्रेजेंट आल्सो, नॉट ओनली इन पास्ट, बट वी कैन यूज इट इन प्रेजेंट आल्सो। आई कुड गो, आई कैन गो, आई कुड गो। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक है प्रेजेंट पास्ट और एक है ओनली इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन विद पोलाइटनेस। ये टेक्निकल पॉइंट है इसमें। आई मे गो, आई माइट गो में क्या फर्क है? आई कैन गो, आई कुड गो। तो इन दोनों में जो फर्क है वो दो मेन पॉइंट्स पे है। नंबर वन, past, yes, as Haneen Khan wrote, politely. Number one, past. Number two, just information or emphasis, as Rizwan wrote, or politeness.
पोलाइटनेस। में आप इंफॉर्मेशन देते हैं, आई मे गो, प्रोबेबिलिटी, या मे आई गो, परमिशन, इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं। माइट जो है, या ये तो पास्ट में है, या ये पोलाइट है, या इसमें अनसर्टेनिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। तो ये जो लैंग्वेज है, अकॉर्डिंग टू द यूज यू हैव टू यूज। वाई माइट एंड कुड आर मोर पोलाइट? बिकॉज पास्ट इज वेरी ब्यूटिफुल, पास्ट इज नॉट रियल, पास्ट इज आइडियल, पास्ट इज ईजी टू कंट्रोल। ओ जी, मुझे करना चाहिए था, और मुझे जो है मैं कर सकता था। एज माई मदर टंग इज पश्तो, सो आई हैव स्टॉप्ड पीपल टू टेल मी द वर्ड कनई। इन पश्तो वी हैव अ वर्ड कनई। उर्दू में क्या होता है? होता। मेरे सामने मैं लोगों को कहता हूं ये लफ्ज में, आप कहते तो मैं आता, आप बताते तो ये होता। आई कुड गो, आई कुड कम, इफ आई वुड हैव गॉट द इंफॉर्मेशन इन टाइम, आई माइट हैव कम। तो ये सारी क्या है? हवाई बातें हैं, पोलाइट बातें हैं, बस खूबसूरती है, बस जिंदगी गुजारने का एक तरीका है, ड्रामाबाजी है। तो मैं लोगों को कहता हूँ यार, बस करना था तो कर चुके होते, नहीं किया तो बस नहीं किया, छोड़ो ये कहानियाँ। ओ जी, आप मुझे कल कहते तो फिर मैं आता, मैंने अभी कहा तो तुमने कौन सा तीर मारा। तो ये सिर्फ जो है एक प्रोबेबिलिटी है, एक आपका जो है माइंड गेम्स है सारे, क्योंकि पास्ट जो है वो रियल है ही नहीं। अभी क्या कर रहे हो कि तुमने कर चुके होते, तुम कर सकते थे, अभी करो, किसने तुम्हें रोका है? तो पास्ट में लोग रिफ्यूज लेते हैं, रिफ्यूज। पास्ट, पीपल टेक रिफ्यूज इन पास्ट। जब वो रियल चैलेंजेस को फेस नहीं कर सकते, प्रेजेंट इज रियल, प्रेजेंट इज रियल चैलेंज, so they will talk to you about the past. Modality, because these are modal verbs, formalities, these are just procedural requirements. ये रियल नहीं है। रियल चीज जो है वो, मतलब अगर आप मे आई कम, तो ये जो कम है ये रियल है, मैं जो है वो फॉर्मेलिटी है। अगर आप किसी के साथ आपकी फॉर्मेलिटी नहीं है, रस्म और रिवाज नहीं है, ट्रेडिशंस नहीं है, तो बगैर मैं, कैन, कुड, इन तमाम चीज़ों के बगैर जो है आप आ सकते हैं। बी एबल टू जो है, जहां आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आई विल बी एबल टू डू इट, आई एम एबल टू डू इट। जब आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मैं कैन यूज करूं, कुड यूज करूं, तो कैन, कुड में जब आप कंफ्यूज होते हैं तो उसका सोल्यूशन क्या है? सेमी मॉडल्स, सेमी, SEMI, सेमी मॉडल्स। सेमी मॉडल्स क्या है? जो एग्जैक्ट कैन कुड नहीं है, लेकिन ये पूरा 2-3 वर्ड्स होते हैं। बी एबल टू, आई एम एबल टू कम नाउ, आई कैन कम नाउ, आई कुड कम नाउ, आई एम एबल टू कम नाउ। तो बी एबल टू जो है, बी एबल टू, दैट इज सेमी मॉडल। ये मॉडल वर्ड्स में नहीं आता, लेकिन ये मॉडल वर्ब्स को रिप्लेस कर सकता है। आई मस्ट कम, आई हैव टू कम। हैव टू जो है सेमी मॉडल है, मस्ट जो है वो मॉडल है। When I was child, I could climb trees. For example, I say, when I was child, I could climb trees. अब ये एक स्टाइल है। एंड आई एम चाइल्ड एंड आई कैन क्लाइम ट्रीज, ये दो है। अब ये पहली बात बड़ी खूबसूरत बात है, कितने अच्छे थे दिन मेरे बचपन के दिन, ठीक है ना। तो माजी में बड़े लोगों को बड़े मजे आते हैं। ओ जी, हमारा मुसलमान कहते हैं कि जी हमारा तो बो अली सीना भी था और हमारा इब्न हैसियम भी था। तो
तो 1400 साल में आपके 14 लोग नहीं हैं, लेकिन लोग उनके नामों की मज़े लेते हैं। 1400 साल में आपने सिर्फ 14 लोग भी नहीं दिए, लेकिन खुश अब है, रात को आपको नींद आती है। तो मॉडल वर्ब जो है उनका यही काम है। When I was child, I could climb trees. I am child, I can climb trees. तो ये आप फील करते हैं कि दोनों सेंटेंसेस में क्या अंदर कहानी है। He has not been able to start study yet. हम ये कह सकते हैं he has not been able to start study yet. और दूसरा क्या है? He could not study, he could not start study. अब दोनों तरीके से आप इस सेंटेंस को कह सकते हैं। He has not been able, he has not been able जो है क्या है? सेमी मॉडल है, ये मॉडल फ्रेज है, मॉडल नहीं है। लेकिन इस पूरी चीज को आप सब्स्टिट्यूट लगा सकते हैं कुड के साथ। He could not start study या he has not been able to start study. After can there will be no to, and there will be no will. Will and can together cannot come. I can come, I will come. ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। आप ये नहीं कहते I can will come, no, ये रॉन्ग होगा। ये क्या होगा? रॉन्ग। तो can के साथ to भी नहीं आता। I can to go, no। can जो है वो इन्फिनेटिव को बर्दाश्त नहीं करता। can जो है वो will को भी बर्दाश्त नहीं करता। can के साथ ना to आता है to, और can के साथ ना will आता है will। I will come सर्टेनिटी है। I would come तो ये पास्ट भी है और ये पोलाइट भी है, और इसमें सर्टेनिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। I could fly via Karachi if I leave the day before. अब ये क्या है? I could fly via Karachi if I leave the day before. अभी क्या है? ये दिल को तसल्ली भी है, ये इंफॉर्मेशन भी है। मतलब मैं कराची की थ्रू अगर आ सकता था अगर मैं एक दिन पहले निकलता। अभी तो जहाज मुझसे निकल गया। I could fly via Karachi if I leave the day before. Could I have your number? Could I have your number? You could take this course. ये क्या है? This is politeness. It is not past, because the course has not yet been taken. So you have to keep in mind the difference between past and politeness. Past and politeness. I hope I am audible and visible. I don't see your comments. The last example that I gave, that is, could I have your number? आप किसी से नंबर लेना चाहते हैं, तो अगर आप ये कहते हैं कैन आई हैव योर नंबर, मे आई हैव योर नंबर, विल यू गिव योर नंबर टू मी, कुड आई हैव योर नंबर प्लीज, सो दैट इज मोर पोलाइट। You could take this course. You could take this course means you can take it. Future. But we use past because we want to be polite. So I hope it was a little clear. Is, ought, fact, value. Can, could, may, might, will, would, must, have to, shall, should. In English language, we have two types of grammar. One is descriptive grammar and the other is prescriptive grammar.
descriptive and prescriptive. Prescriptive means that you have to say like that. Shall I come? He shall come. He will come. But now the descriptive grammar is that things are changing. I can say that I will come. पुराना ग्रामर जो था प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर में आई के साथ हमेशा शल आता था. आई के साथ हमेशा शल आता था. अभी आई जो है उसके साथ आप विल लगा सकते हैं. शल इज यूज्ड फॉर मोर एम्फसिस. शल इज यूज्ड फॉर मोर एम्फसिस. आई शल कम मीन्स आई विल कम डेफिनेटली. मैं जरूर आऊंगा. आई शल कम. आई शल कम. आई विल कम भी ठीक है. ये डिस्क्रिप्टिव ग्रामर है. अभी अंग्रेजों ने शल को इस्तेमाल करना कम कर दिया. विल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है. सो दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव ग्रामर. प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर ये है कि नहीं जी बच्चों तुमने आई के साथ शल इस्तेमाल करना ही है. प्रेस्क्रिप्टिव. प्रेस्क्राइब. डॉक्टर आपको नुस्खा क्या करता है? प्रेस्क्राइब करता है. आपको नुस्खा देता है कि भाई ये आपने सुबह शाम ये गोली खानी है, मरोगे या जिंदा हो तुमने खाना है. सो दैट इज कॉल्ड प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर. तो ग्रामर जो है वो अभी चेंज हो रहा है थोड़ा बहुत, इतना भी नहीं. तो शल और विल का फर्क जो है वो कम से कम होता जा रहा है. नाउ वी कम टू द सेकंड. दिस इज आवर लास्ट क्लास on verbs, but I would like to see some of your writing that is more important. So please write. We have no time for 3 paragraphs. There should be ideally 3 paragraphs. Remember always. जब भी आप लिखते हैं minimum 3 paragraph लिखा करें. According to the formula of introduce, explain, recommend, conclude. Please write this formula once again, which is IERC. IERC. Introduce, 1 grammar. Explain, 2 paragraphs. Recommend, 4 paragraph. Conclude, 5th paragraph. तो रूटीन में जो है कम से कम आपके 5 पैराग्राफ होने चाहिए. 5 नहीं है तो कम से कम 3 तो हो. इंट्रोड्यूस, बॉडी, कंक्लूजन. बॉडी के अंदर जो है आप यू कैन पुट बोथ रिकमेंडेशन एंड एक्सप्लेनेशन एंड रिकमेंडेशन. इसके बगैर तो लिखना है ही नहीं. याद रखना, नो राइटिंग विदाउट IERC. प्लीज राइट दिस फार्मूला. No writing without IERC. IERC के बगैर राइटिंग है ही नहीं. वो ऐसे जॉटिंग डाउन है या कोई ड्राइंग शाइंग आप करते हैं, पेंशन पे कोई कागज़ मागज़ लिखते हैं, तो वैसे तो वो राइटिंग तो है, लेकिन वो फॉर्मल एकेडमिक राइटिंग नहीं है जब तक इसमें IERC ना हो. तो इंट्रोडक्शन का 1 पैराग्राफ, एक्सप्लेनेशन रिकमेंडेशन के 1 या 2 या 3 पैराग्राफ कम से कम, और कंक्लूजन का 1 पैराग्राफ. इंट्रोडक्शन कंक्लूजन हमेशा 1 पैराग्राफ होगा. हमेशा, ऑलवेज. इंट्रोडक्शन को आप 1 से ज्यादा पैराग्राफ नहीं कर सकते. कंक्लूजन भी 1 पैराग्राफ होगा. बॉडी पैराग्राफ का कोई हद नहीं है. कम से कम 1 तो हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो. बॉडी पैराग्राफ्स का कोई लिमिट नहीं है. वो डिपेंड करता है, मतलब आपको वर्ड लिमिट दिया जाए कि भाई 3000 वर्ड्स आपने लिखने हैं, तो 3000 वर्ड जो है कम से कम आपको 20-25 पैराग्राफ तो लिखने पड़ते हैं. ये हमारा नेक्स्ट मंथ का हमारा ये टारगेट है. मैं चाहता हूं कि आप लोग 5 पैराग्राफ से 15 पैराग्राफ पे कम से कम पहुंच जाए एक टॉपिक पे.
तो ये मेंटल एक्सटेंशन प्रोग्राम है, माइंड को एक्सटेंड करे, एक्सपेंड करे, आपके पास ज़्यादा बातें, ज़्यादा आर्गूमेंट्स, ज़्यादा डेटा, ज़्यादा एनालिसिस आ जाए, ताकि आप एक टॉपिक पे ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकें। जो लिखारी होते हैं राइटर्स, मुझे अगर आप कहे, मुझे टेस्ट करे कि यार ये जो पेन है, इस पेन पे आपने 100 पैराग्राफ लिखने हैं, तो इस पेन पे मैं 100 पैराग्राफ्स लिख सकता हूं, 100 पैराग्राफ सिर्फ इसी पेन पे, क्योंकि ये एक राइटिंग स्किल होता है। आपके पास राइटिंग, आप लिख सकते हैं, पेन का पास्ट, पेन का प्रेजेंट, पेन का फ्यूचर, ठीक है, पेन की यूजेस, पेन की टेक्निकलिटीज़, पेन की केमिस्ट्री, पेन की फिजिक्स, पेन की जो है और इसकी यूजेस, पेन इज़ माइटर देन स्वॉर्ड, फिर जी वार पे शुरू हो जाओ, एजुकेशन पे शुरू हो जाओ, पेन जो है सिंबल है, पेन का जो लिटरेचर है, पेन की जो फिलासफी है। तो एक पेन पे आप 100 पैराग्राफ्स लिख सकते हैं, मैं लिख सकता हूँ, दिस इज माई क्लेम। अगर कोई मुझे चैलेंज करे या मुझे कहे जी आपने करना है, ऑब्लिगेशन, यू हैव टू, जो आपने मॉडल वर्ब पढ़ा, हैव टू, मस्ट। तो फिर सुई पे, मच्छर पे, वैसे देखा जाए तो बैक्टीरिया पे लोगों ने पीएचडी की होती है। एक छोटा सा बैक्टीरिया जो नजर नहीं आता, उस पे लोग पीएचडी करते हैं। तो ये राइटिंग जो है, ये मेंटल एक्सटेंशन प्रोग्राम है, माइंड को एक्सटेंड करो, इसके मुख्तलिफ पहलू पे सोचो। सो प्लीज यूज सम ऑफ द मॉडल वर्ब्स इन योर राइटिंग, एंड यू कैन राइट ऑन एनी टॉपिक, स्पेशली my future obligations, my career, my ambition, मेरा एम्बिशन जो है क्या होना चाहिए, ठीक है, जिंदगी में आगे आपने क्या करना है, आपका कैरियर क्या है, 60-70 साल में जब आप होंगे तो आप क्या, कौन सा शक्ल में अपने आप को देखना चाहते हैं, इन व्हाट शेप यू वांट टू डाई, किस तरह मरना चाहते हैं। तो इसमें कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, मस्ट, हैव टू, शल, शुड, इज, ऑट, फैक्ट, वैल्यू, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करो। माई एम्बिशन, माई वी मोसा, VMOSA, प्लीज राइट इट, वी मोसा, ये बड़ा खूबसूरत फार्मूला है। विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटेजी, एक्शन प्लान, या आप अपना स्वॉट एनालिसिस भी कर सकते हैं, SWOT, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। ये फार्मूले का मतलब ये है कि आपको एक लाइन मिल जाती है लिखने के लिए। सो प्लीज राइट, बट यूज एज मेनी एज मॉडल वर्ब्स एज यू कैन। ये सिर्फ ग्रामर में पढ़ना नहीं है कि ये कैन, कुड क्या है, इसको इस्तेमाल भी करें। सो वी मोसा जो है, विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटेजी, एक्शन प्लान। लिखे प्लीज, एवरीबॉडी शुड राइट एटलीस्ट 1 पैराग्राफ। होना तो ये चाहिए कि आप इंट्रोड्यूस करें, एक्सप्लेन करें, रिकमेंड करें और कंक्लूड करें। लेकिन टाइम नहीं है, वी हैव जस्ट 10 मिनट्स, हरी अप प्लीज। You can write on any topic. My suggestion is that you should write on your ambition of life, career, legacy, lawful, learn, apply, accomplish, be famous, leave legacy. आप जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं, इज, ऑट, फैक्ट, वैल्यू, मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स को इस्तेमाल करें एक रियल लाइफ सिचुएशन में।
So please start submitting your paragraph on your ambition, your career, your future, your dreams, what you should do, what you can do, and what you are really doing. इस आप जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, इस पे कुछ लिखो, कुछ सेंटेंसेस लिखो. I must wake up to materialize my dreams. ये एक हुक होगा आपके पैराग्राफ के लिए. अगर कोई नहीं लिख सकता तो ये लिखे, I must wake up to materialize my dreams. I have to go to bed with satisfaction and I must get up with determination. ये हुक्स होते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस. हुक ये होता है कि कोई खास स्ट्रांग चीज से स्टार्ट करो. अगर कोटेशन देना है तो उसको अपने अल्फाज में चेंज करो, डायरेक्ट कोटेशन मत दो. ईजा खान कहते हैं, आई वुड बी अ CSP
in coming few years. I know I could do it with a consistent hard work. For this, I must have to study day and night with a great zeal. There should be proper guidance and daily checking. Excellent. दिल मेरा गार्डन गार्डन हो गया बड़ा ज़बरदस्त. एक्सलेंट. बस अच्छी आप काम करोगे तो आपको शाबाश मिलेगा, नहीं करोगे तो फिर आपको लताड़ेंगे. एंड हैव विश टू क्लियर विजन एंड हैव विश टू लीव अ लेगेसी फॉर द कमिंग जनरेशंस. ज़बरदस्त. नेक्स्ट प्लीज़. I must wake up to materialize my dreams. I must go to bed with satisfaction and have to get up with determination. ये स्टार्टर सेंटेंसेस होते हैं. ये आपके पास 10-15 इस तरह के सेंटेंसेस होने चाहिए जनरल किस्म की. तो ये है अपना अब्दुल लतीफ़, सेव द प्लेनेट इन द फ्यूचर. वी, अब ये वी मी शी छोड़ो ना. आप वी का क्या है? मैंने आपको कहा आई माई. अपने आप पे चीज़ को अप्लाई करो. आपका फ्यूचर क्या है? बहरहाल आपके पास चॉइस. अपना टॉपिक भी, इन द फ्यूचर वी मे सम डे कॉलोनाइज द स्पेस. दिस कुड, अभी नेगेटिव है ना, आपका माइंड नेगेटिव है. कॉलोनाइज का क्या मतलब है? एक्सप्लोर लिखो, कॉन्कर लिखो. कॉलोनाइज कर लिखना ज़रूरी है. नेगेटिविटी ख़त्म करो. कम से कम एग्जाम्स के लिए नेगेटिविटी का, एग्जामिनर को नेगेटिविटी नहीं चाहिए. कॉलोनाइज एक नेगेटिव वर्ड है. दिस कुड बिकम एसेंशियल व्हेन द प्लैनेट नो लॉन्गर सस्टेन्स अस. वी विल बी लेफ्ट विद 2 ऑप्शंस, डाई और लीव. वी ought to realize that today we still have 2 different options, save our planet or you. So you have great writing style, but please come to examination hall. Examination hall में आ जाओ. एग्जामिनर, ब्यूरोक्रेसी, यही नॉलेज आपका. अगर आप इसको स्ट्रीम लाइन करो, ट्विस्ट करो, फ्लेक्सिबल करो, सो यू विल बी द टॉपर ऑफ CSS. ये नेगेटिविटी, सेटारिकल जो आपका अप्रोच है, दिस इज नॉट रिकमेंडेड. आप वैसे कोई अतर बनना चाहते हैं तो बन जाओ. हुमा खान, आई मस्ट फॉलो द थिंग्स इन राइट वे. परसूटिंग नहीं होता ना, परसूविंग होता है. हुमा खान, किधर से तुमने परसूटिंग बनाया? ये तो अंग्रेजी का ये मुसीबत है. परसूट नाउन है, परसू वर्ब है. प्लीज राइट इट. हुमा खान, परसूट नाउन, परसू वर्ब. जब हम वर्ब यूज करेंगे परसू लिखेंगे, नाउन यूज करेंगे परसूट लिखोगे. और गोल का भी स्पेलिंग आपने गलत लिखा है. इट्स जो है IT'(S), इट इज. ठीक है, लेकिन इसमें आपके मॉडल वर्ब्स कम है, कुछ है. आई वुड लाइक टू शेयर माई पर्सनल प्लान दैट इज़ हाईली सिग्निफिकेंट इन माई लाइफ. ओके. अमजद साहिल, माई एम्बिशन ऑफ लाइफ, आई विल बी a CSP in upcoming 2 years, and for this don't use symbol and. it is academic writing. write AND. ये एकेडमिक फॉर्मल राइटिंग है, तो इसमें आप एब्रिविएशन जो है अवॉइड करें. जो एंड का आपने स्पेलिंग लिखा, सिंबल लिखा है, नो. फॉर दिस आई मस्ट हैव अ मीनिंगफुल स्ट्रेटेजी फॉर माई मिशन टू बी a CSP. आफ्टर अचीविंग दिस मिशन आई वुड बी एबल टू सर्व माई कंट्री. आई मस्ट हैव टू जॉइन अ रिसोर्सफुल प्लेटफॉर्म टू कन्वर्ट माई दिस एम्बिशन इनटू रियलिटी. आई मस्ट वर्क हार्ड टू फुलफिल. अब मस्ट के पीछे पढ़ो. ये 10-12 जो है मॉडल वर्ब्स है, सबको यूज़ करना. इट शुड बी माई प्रायर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है.
I must have a meaningful strategy. Okay. Praiseworthy, commendable, not bad. Amara Mukhtar, my aim in life. My aim in life is to live like a leader and leave a legacy. क्या बात है. To fulfill this, I ought to be vigilant, hard-working and consistent. I must not waste even a single. Very good. Ambitious people, they write ambitiously. They are confident. Excellent, Amara Mukhtar. Shakir Zaidi. Irrespective of the extreme hard work, no one is clear what future holds for one. I should keep on working with good hope. Okay, Shakir Zaidi, not bad. Maha Arai. Ambition is a strong desire to do or achieve something. You have defined ambition, so that is not bad. ये हुक होते हुक. आपको जो पहला सेंटेंस है या पहले 2-3 सेंटेंसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. Everyone has their own ambition. My ambition is to serve my country after becoming CSP. To achieve my goals, I must have. Okay, Maharai, not bad. I ought to become a CSP officer and bring a change in our education department. एजुकेशन डिपार्टमेंट का CSP के साथ क्या ताल्लुक है? मतलब इररेलेवेंट चीज़ें मत इकट्ठा करो. एजुकेशन में आपने ठीक करना है तो फिर कोई हेडमास्टर बनो, कोई एजुकेशन डायरेक्टर बनो, कोई अपना प्राइवेट स्कूल खोलो. CSS का एजुकेशन के साथ डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं है. फैक्चुअल, फैक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जरताशा खान, हमेशा रियलिटी की दुनिया में रहो. My vision is to be a great person and leave legacy when I die. I ought to be a wishful thinker but not... No, ought to be नहीं है ना. I am a wishful thinker but now I know I shall make it. गलत है ना. ought to be का मतलब ये कि होना चाहे. Moral obligation. Moral obligation. ख्वाजा वलीद. ought to हम कहाँ यूज़ करते हैं? ये मॉरली हमारा ऑब्लिगेशन है, करना चाहिए, एथिकली. इतना गलत सेंटेंस मत लिखो. CSS is the first step to it, I will believe. Okay. So thank you guys for your participation and using modal verbs. Farkhanda Zeb, my aim in life is to become the first female bureaucrat in the district of Charsadda. अब ये फैक्ट नहीं है, चारसद्दा में होंगे लोग, आप फीमेल नहीं है. मतलब ये देखो, मतलब इस तरह के क्लेम से पहले मुझे नहीं पता कि चारसद्दे में कोई फीमेल ब्यूरोक्रेट है या नहीं है. अगर है तो फिर लोग आपको थप्पड़ मारेंगे क्यों तुमने गलत बयानी की. गलत बयानी कभी नहीं करना राइटिंग में. राइटिंग शुड बी करेक्ट, फैक्चुअल, लॉजिकल, एप्रोप्रिएट. ये उसका दूसरा फार्मूला है. करेक्ट, ग्रामेटिकली करेक्ट, फैक्चुअल. फैक्ट्स के अगेंस्ट आप नहीं लिख सकते. पर्सनल राइटिंग है तो और बात है, अपनी डायरी में जो भी लिखो लिखो, लेकिन पब्लिकली आप नहीं लिख सकते. लॉजिक होना चाहिए, एप्रोप्रिएट होना चाहिए. ओपिनियन बेशक आप दे, लेकिन आपका ओपिनियन भी लॉजिकल हो, रीजनेबल हो. ये देखो कि चारसद्दा में है या नहीं है. मैं इस चीज़ के बहुत सख्त खिलाफ हूँ कि आप गलत बयानी करें. मिस स्टेटमेंट. आई वॉन्ट टू समथिंग न्यू इन माई सोसाइटी. शाबाश है. ओके, ऑल द बेस्ट गाइस. विश यू बेस्ट ऑफ लक इन योर एम्बिशियस career. But please write, before I leave the class, write these 2 sentences. I must wake up to materialize my dreams. I must go to bed with satisfaction and get up with determination. Determination. ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंसेज है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप सारी ज़िंदगी ख्वाब ही देखोगे तो क्या जाग भी जाओ, ख्वाब को जो है उसको फिर मटीरियलाइज भी करना है, तो बेड से बाहर निकलो. So see you. Thank you. Now see you in current affairs classroom for our last class on
global issues.